Yes, please be attentive. After its basic description and definition, we need to discuss about its different stages of money laundering. We call it stages, we call it characteristics of money laundering. Without these three, the placement first, layering second, and integration the third, the crime of money laundering may not be complete. It's like a half-hearted attempt until these three stages are not actually complete or end. Now, the first stage is known as placement. The first stage of money laundering known as placement. It's like a obtaining the money or introducing it into the financial system in some way. Investment is obtaining the money or introducing it into financial system in some way. Briefly मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर explain करूंगा. Next is layering. Layering is transferring or concealing the source of money through complex multiple transactions. The second stage. The third one is integration, like return profit of same money, which is the black, into the financial world. So it appeared to be legal. मतलब उसी पैसे को वापस कमा के लोग सोसाइटी में दोबारा लेके आ जाना ताकि लोगों को वो एक वाइट मनी नजर आना शुरू हो जाए. The first one is placement. Okay. Replacement refers to physical disposal of bulk of cash proceeds right from illegal activity. This is the first step of money laundering process, and an ultimate aim of this phase is to remove the cash from the location of acquisition. So, aim is to avoid detection from authorities. Placement क्या होती है? Placement में वो proceeds या वो assets जो crime से earn किए जाते हैं. कौन कह रहा है? Kindly confirm करें नाम. नदीम है सर, नदीम। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? डेलिबरेटली आ रही है या वाकई से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? प्लीज अपनी माइक को ऑफ रखें. If there's some problem in your background, please put your mic off. Removing that. Okay. So placement is the first stage involve the proceeds derived from illegal activities, the movement of proceed, frequently currency, from scene of crime to a place or into a financial system. From the scene of crime, so the less suspicion may be occurred. अच्छा गौर से सुनिए अब. प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो जो डर्टी मनी होता है दैट इज अर्न फ्रॉम क्राइम्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं इसको. लेट मी मैं सबको माइक ऑफ कर रहा हूँ. इफ यू क्वेश्चन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. हाँ साईं, इहो पोयां खां आवाज़ थी अचे, इहो पहिरीं में ब्लिंक मोते आयो, इहो ॾिसो साईं. So what actually happened in a placement, the criminal dirty money उसको बड़ा complicated तरीके से place किया जाता है into financial system. Now as you know that now if a criminal group is there जो भत्ते से या किसी क्राइम से पैसे को अर्न करता, अब क्राइम सीन से मुराद वो उन पैसों को उन्होंने अपने घर में रखा है, कहीं भी रखा है, so it's not money laundering.
to have money at your place or a crime place is not a money laundering. भाई आप खर्च करें, it's not money laundering. But if you want to launder money, naturally you have to place the money first. सबसे पहले प्लेसमेंट आपको करनी पड़ेगी, otherwise you cannot launder the money. You cannot make it clean. आप उसको धो नहीं सकते. उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें फर्स्ट टाइम. First time step of money laundering is basically is to remove the cash from the location of acquisition. अब कैसे करेंगे आप? Through a transaction, through a bank account. But it's not a simple bank account. जैसे हम अपने अकाउंट किसी का अपना अकाउंट हमने खोलवा लिया, हमने अपने पैसे रख लिए अपने अपनी सेविंग्स को, because we have the legal money, therefore we never require any sort of disguise. लेकिन क्योंकि यहाँ बात हो रही है उन लोगों की who go for laundering, तो सबसे पहले वो करते हैं अपने पैसों को, अपने मनी को प्लेस करते हैं सिस्टम में ताकि वो लॉन्डर हो जाए. तो प्लेस से मुराद में क्या होगा कि वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं फर्स्ट टाइम. एक अकाउंट खुलवा लिया, 2-3 अकाउंट खुलवा लिया, एक फेक अकाउंट, अकाउंट उनके नाम पर भी होगा, तो वो उस अकाउंट में कम से कम पैसे रखेंगे, और 5-6 अकाउंट डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट जगहों पर, या अपने ड्राइवर के नाम पे अकाउंट, वो किसी कुल्फी वाले, किसी फालूदे वाले, किसी चाय वाले, किसी फकीर, किसी थर्ड सपोज करें आप थर्ड पार्टी के नाम पे अकाउंट उन्होंने खोलवा लिया. अब वो अकाउंट या तो वो बंदा उनके कंट्रोल में होता है, या तो फिर उसकी जो वो एक फेक अकाउंट होता है. लेकिन ये हो गया कि वो पैसे सिस्टम में आ गए. अब सपोज करें कुछ लोग होते हैं हु आर एट वॉच लिस्ट, लेकिन वो बेचारा गरीब, जिसका अकाउंट ही नहीं है दुनिया में, या जो कोई जॉब नहीं करता, तो वो किसी भी SBR किसी भी इदारे के वॉच लिस्ट पे नहीं होता. तो उसके नाम पे अगर पैसे जमा हो गए तो बैंक को तो पता होगा, लेकिन इदारों को नहीं पता होगा कि वो पैसे कहाँ से आए, क्योंकि हर एक बंदे के बैंक ट्रांजेक्शन या बैंक स्टेटमेंट इदारों के पास नहीं होती. Therefore, what they try to do, they place the money with a complicated transaction. Okay, from a multiple bank accounts. अब यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, वो जो पैसे हैं ब्लैक मनी, एक अकाउंट ए फला बैंक ए में, अकाउंट बी बैंक 2 में, अकाउंट सी बैंक सी में, अकाउंट 4 बैंक डी में. तो वही सोर्स इज सेम, मनी सेम, पर्सन इज सेम, बट पर्सन हैज अ मल्टीपल अकाउंट इन अ डिफरेंट बैंक. एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आपने प्राइस बॉन्ड खरीद लिए, मैं भी प्राइस बॉन्ड्स, मैं भी पैसों की जो सपोज का आपके पास 1,000 के पैसे आपने 5,000 के लिए कर लिए, डॉलर्स में ले लिया आपने, गोल्ड ले लिया. ओके, सो दिस मे बी द फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट. मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है जिससे वो पैसों की लॉन्डर हो जाए. दिस इज नोन एज अ फर्स्ट स्टेज और अ प्लेसमेंट ऑफ द मनी. नाउ प्लेसमेंट में this is achieved by investing criminal money into the legal financial system by opening up a bank account in the name of unknown individual or organization and depositing the money in the account. आपने सुना होगा शेल कंपनीज या ऑफशोर कंपनीज, जो भी मैंने बात की कि वो कैपिटल की हद तक होती हैं, दे हैव नो वर्किंग, दे हैव नो स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो शेल कंपनीज या जो फेक कंपनीज होती हैं, उनके तौर पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उनके नाम पर भी. उनके सपोज करें कंपनी जो शो कर रही है, उनके इतने मुलाजिम है उनके पास, ये वो काम करते हैं, या उनका ऑफिस है, ये वो बिजनेस करते हैं. अब उन कंपनीज के नाम पे अकाउंट खुलवा लिया जाए, ठीक है. अब उस अकाउंट में अगर पैसे जमा हो जाए तो क्या होगा? ये होगा, तस्वीर किया जाएगा कि वो कोई कंपनी है, इतने लोग हैं, इतना काम है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इस कंपनी का ये प्रॉफिट है जो वो जो उस कंपनी का नाम पर है. अब एक बिल्डर है, तो ब्लैक मनी है, अब वो एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है. अब वो अपने पैसों से वो प्रोजेक्ट लॉन्च करे, वो पैसे अपने सारे के सारे बैंक में जमा करा दे, तो वो पकड़ा जाएगा कि उसने इतने पैसे कहाँ से अर्न किए. लेकिन क्या होगा कि वो आपसे इंस्टॉलमेंट ले रहा है, आपसे बुकिंग में पैसे ले रहा है.
तो भले वो पैसे आपके पैसे लेकर वो कहीं पे रख ले और वो अपने पैसे कितने भी वहां पे जमा करा दे अपने बैंक में, तो ये होगा ये तस्वीर ये होगा कि क्योंकि ये जो कंज्यूमर थे, क्लाइंट से, ये उनका पैसा है जो वो माहाना या रोजाना जमा करना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट में किसी भी तरीके से पैसों को, ब्लैक मनी को, डर्टी मनी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना ताकि बाद में वो वाइट हो जाए। ओके, आर यू क्लियर अबाउट प्लेसमेंट? Now the next stage of money laundering is layering. Layering कहते हैं by word meaning to conceal it, to conceal the origin, to disguise the origin. प्लेसमेंट में हमने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की, जमा कराए, शक्ल चेंज की, ट्रांसफर किए। अब ऐसा ही कोई एग्जांपल लिख लें। प्लेसमेंट के डिफरेंट मेथड थे। अभी आपको बताया करेंसी चेंज करना, प्राइस बॉन्ड ले लेना, या बैंक अकाउंट मल्टीपल ओपन करवाना, फेक नाम से करवाना। फिर आप देखें कि वो जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी हुई थी, तो आईएनएल केस आप देख लें कि एक तरीके से पैसों को प्लेस किया जा रहा था, यहाँ से ट्रांसफर किए करते हुए द मनी, ब्लैक मनी वाज अटेम्प्ट टू बी प्लेस्ड। ओके, तो ये भी एक मेथड था मनी लॉन्डर करने का कि आप यहाँ से उससे मुल्क कम पैसे, ना, अगर वो आईएनएल एक ही विजिट पे सारे के सारे पैसे लेके जाती तो क्या होता, शी मे बी इजीली अप्रीहेंडेड। तो फिर वो क्या करती थी, ऐसे लोग क्या करते थे, तो वो कम कम पैसे थर्ड पार्टी के नाम पे, हाँ वो पैसे किसके थे, उसके नहीं थे, सारे के पैसे पैसे नहीं थे, मल्टीपल पैसे थे, मल्टीपल विजिट पर लिए ट्रांसफर किए गए थे, थे किसी और के, वो लेके कोई और जा रहा था ताकि उसको शक नहीं हो। तो इट्स प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेयरिंग में क्या होता है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू हाइड देयर ओरिजिन। इट कंसिस्ट ऑफ पुटिंग फंड्स व्हिच हैव concealed entered the financial system through series of financial operation to mislead potential investigators. Okay, and give the funds the appearance of having legal origin. Again, obscuring the source is the key. Launderers may purchase expensive items such as jewelry, car, in order to change the money form. Okay. अब लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में बेसिकली इट अ सेकंड स्टेज, or it involves the separation of proceeds from illegal source through a use of complete transaction. The criminal frequently use shell companies, offshore banks, or accounts which lose regulation and secure laws for the purpose. लेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे लेयरिंग में प्लेसमेंट में सिर्फ पैसे ट्रांसफर किए गए, अकाउंट खुलवाए गए। लेयरिंग में क्या होता है, उन्हीं फेक अकाउंट्स को और ज्यादा मल्टीप्लाई किया जाता है। अब सपोज करें यहाँ पे एक अकाउंट था बैंक ए में, अब वो अकाउंट वही पैसे कहाँ जाएंगे, अकाउंट ए के में, अकाउंट ए उसी बंदे के बी अकाउंट में जाएंगे, फिर वहां से फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकाउंट ए सी में, फिर अकाउंट टू बी बैंक टू में, फिर वहां से फिर वो अकाउंट टू और बी में आएंगे, फिर आखिर में फिर वो अकाउंट एक्स में आएंगे और वो बैंक वाई होगा। मतलब मेरे पैसे आपके अकाउंट में गए, आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट से गए, उसके फिर किसी और अकाउंट से गए, इस तरीके से वो मल्टीपल अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएंगे, ताकि गोल क्या होगा इनका, लेयरिंग, लेयरिंग से मुराद छुपाना, कंसील करना, डिसगाइज करना, खुफिया रखना। ठीक है, तो सपोज करें अगर वो पैसे एक अकाउंट में ही गए, तो फिर आसानी से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो लेयरिंग में दे ट्राई टू डिसीव पोटेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स, जो इतने कंफ्यूज हो जाएं कि उनको पता नहीं पड़े कि जमा किसने कराए, लिए किसने, फिर किसने लिए, कहाँ गए, किस बैंक से गए। So it's quite difficult to, layering is one of the most complicated source of money laundering. सबसे जो सिंपल सोर्स है वो प्लेसमेंट है, and most of the money launderers they are apprehended in a placement. काफी पकड़े भी जाते हैं प्लेसमेंट करते हुए। ठीक है, आपने देखा होगा कि फला जगह छापा पड़ा, तो फला घर में इतने इतने पैसे बरामद हुए, फला बंदे के बैंक अकाउंट के बारे में पता पड़ गया, उसके बाद इतने पैसे पड़े हुए हैं और वो पकड़ा गया।
तो प्लेसमेंट इज क्वाइट इजियर एंड इट इज वेरी सिंपल टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन जब प्लेसमेंट से बात आगे निकल जाए और लेयरिंग तक पहुंच जाए और लेयरिंग कामयाब हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस लॉन्डर को पकड़ना या उसको फिर एप्रीहेंड करके उसको प्रूव करना एज ए क्रिमिनल। बिकॉज लेयरिंग अगर हो जाए तो वाकई मुश्किल हो जाता है। अब सपोज करें चाय वाले के अकाउंट में पैसे चले गए, वहां से किसी और के अकाउंट में किसी ने कैश करा लिए। अब एक तो पता नहीं पड़ेगा कि किसने जमा कराए थे, ये पता नहीं पड़ेगा किसने कैश कराए थे, और फिर वही पैसे फिर चले जाएंगे कहीं और पे। तो लेयरिंग इज बेसिकली ए मेथड ऑफ डिस्गाइजिंग द मनी, कंसीलिंग द मनी और हाइडिंग द मनी। ना, पैसे को घर में हाइड करने इज नॉट लेयरिंग इन एवरी टाइम। फाइनेंशियल सिस्टम में उसको लेयर करना इज टू लेयरिंग। ओके, वो इस तरीके से हो सकता है कि आपने उन्हीं कंपनीज के नाम पे जो अकाउंट खुलवाए थे, उन्हीं के नाम पे फिर आपने पैसों को कहीं और ट्रांसफर कर लिया। अब देखें कि अब एक एक सपोज करें रियल एस्टेट का एक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अब ये पाकिस्तान में कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। आप देख लें मेरिया टाउन देख लें, उनका आप देख लें कि लोग किस तरीके से कहते हैं हाउ दे गोइंग टू अर्न मनी। वो जो इसी तरीके से आप देखें कि उनका उनकी जो ऑपरेशन से वो किस हद तक है कि किस तरीके से वो कंज्यूमर को इन्वॉल्व करते हैं, उसी पैसे को फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसी पैसों को वो इंटीग्रेट करके फाइनेंस मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अहम एस्पेक्ट होगा लेयरिंग इस सेंस में कि लेयरिंग में पैसों को कंसील किया जाता है विद अननोन फेक मल्टीपल ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ टाइम लेयरिंग में जो लॉन्डर्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से वो क्राइम करते हैं, सच एज दे परचेज एक्सपेंसिव आइटम लाइक ज्वेलरी कार्स इन ऑर्डर टू चेंज द मनी फॉर्म। ओके, तो लेयरिंग में ये भी होता है प्लेसमेंट, यू नीड टू प्लेस द मनी इन सिस्टम। लेयरिंग से आपने उसको उसकी फेस को चेंज कर लिया, आपने उसको या तो फेक अकाउंट मल्टीप्लाई कर दिया या तो आपने उससे कोई महंगी प्राइस बॉन्ड ले लिए, आपने उसे ज्वेलरी ले ली, आपने बड़ी महंगी कार ले ली उससे, और वो भी इस तरीके से ली कि आपको उसको टैक्स पे नहीं करना पड़े और आप उसको डिस्गाइज कर लें यहाँ पे। ओके, फिर आखिर में आता है इंटीग्रेशन, द थर्ड स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। Integration refers to the reinsertion of laundered proceeds back into economy in such a way that they re-enter in financial system as normal business funds. The funds may be introduced in the economy for instance, purchase of luxury item or through direct investment in assets such as shares in company or real estate. Okay. अब इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में, जो थर्ड स्टेज में वही पैसे जिनको प्लेस किया गया और बाद में उनको लेयर किया गया, उनको फाइनेंशियल सिस्टम में दोबारा लेके आया जाता है एज ए नॉर्मल वाइट लीगल मनी। अब आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि प्लेसमेंट एक 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 कुछ मनी लॉन्डर्स हैं जिन्होंने अनलॉफुल सोर्स से पैसों को ट्रांसफर किया बाहर, लंदन, स्विट्जरलैंड, थ्रू ट्रांसफर ऑफ मनी, हवाला हुंडी या तो एक स्मगलिंग के थ्रू। लेकिन अवान एन अलिया के हिसाब देख लें, प्लेसमेंट उसमें की कहाँ पे हुई, जब वो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, थर्ड पार्टी कर रही थी। लेयरिंग वहां पे कहाँ हुई, उन्होंने फेक ऑफशोर कंपनीज बना ली जो पेपर की हद तक थी। ठीक है, अब उन कंपनीज का क्योंकि वर्किंग या तो कम थी या तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमें पैसों को वाइट करने का प्रोसेस पूरा करना होता है, वाइट करना नहीं होता, एक्चुअली बिजनेस नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसको लोगों को बताने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है ताकि लोगों को धोखा आ जाए कि वाकई ये पैसे लीगल तरीके से कमाए गए। तो लेयरिंग तो हो गई उसमें जब वो पेपर की कंपनीज बनी और उनके अकाउंट से पैसे में जमा हुए और उन्हीं के अकाउंट से पैसे निकल गए कहीं पर, निकल के कहीं भी चले गए ना, देखा ना। अब वो अकाउंट्स जो थे वो फेक अकाउंट थे, तो वो फेक अकाउंट में पैसे जमा हुए और फेक अकाउंट पैसे निकल गए। जब निकल गए तो क्या बन गए, कार ले ली,
घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ज्वेलरी ले ली, गोल्ड ले लिया। अब क्योंकि उनको तीसरी स्टेज पूरी करनी होती है, अब उनके पास इतना पैसा है, गाड़ियां हैं बाहर, फ्लैट्स हैं, फंड्स हैं, अब वो यूज करना है उनको अपने मुल्क में जाके। तो वो क्या करेंगे, वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब उन्हीं पैसों से अब उन्होंने पाकिस्तान में उसी फेक कंपनी ने पाकिस्तान में एक बड़ी फूड चेन खोल ली, डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली, या एक घर खरीद लिया, या कोई इंडस्ट्री लगा ली। कैसे लगा, कौन लगाएगा? अब वही कंपनी जो ऑफशोर कंपनी थी बाहर, वही कंपनी पाकिस्तान में आके एक इंडस्ट्री लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, मल्टीनेशनल कंपनी खोलेगी। तो इधर कोई किसी को नहीं पता पड़ेगा कि वो कहाँ से, बिकॉज उन्होंने एक लीगल सोर्स से उसको इंटीग्रेट कर लिया था बेसिकली। यहाँ पे आप देख लें एग्जांपल, प्लेसमेंट आप देख लें, इनिशियल जो मनी लेयरिंग क्या हुई, अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अननोन एंड फेक अकाउंट। फिर इंटीग्रेशन आप आखिर में देख लें, उन्हीं उन्हीं उसी अकाउंट, उसी शेल कंपनी से, उसी उसी से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गई, लग्जरी गुड्स परचेज विथ प्रोसीड ऑफ क्राइम, घर, गाड़ी, होटल, बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडस्ट्री खुल गई। अब अब क्या होगा, अब आपकी नजर में, मेरी नजर में, वो पैसे जो थे वो एक बिजनेस से कमाए गए थे, लेकिन वो बिजनेस तो था ही नहीं, या नाम नाम था, या फेक था, या पेपर की हद तक था। तो उस बिजनेस के का प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट कहाँ क्या था, प्रॉफिट टाइम था। लेकिन आपकी मेरी नजर में वो एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, अमेरिका लंदन में बिजनेस है, और वही बिजनेसमैन आज पाकिस्तान में एक फूड चेन बाइक इंडस्ट्री लगाने जा रहा है। तो मैं इसको क्रिमिनल नहीं कहूंगा, बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन कहूंगा। तो इंडिकेशन जब हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन पैसों को समझना, उनकी सोर्स को समझना, और उसको उसको कंसील करना, या उसको इस तरीके से लेना कि वो पैसे इलीगल सोर्स से कमाए गए हो। ओके, so there are three stages here. Assessment, the first one just based on introduction, layering, complicated, more difficult, very we can call it complex, because उससे आपको उसको डिस्गाइज करना होता है, तो दैट लोगों की नजर में वो चीजें मशकूक नजर नहीं आए। फिर आखिर में जाके इंटीग्रेशन हो जाती है, वही पैसे जब दोबारा हमें मिलते हैं। अब देखिए ना, आपका मेरा हम सबका टैक्स का पैसा करप्शन के तौर पर कोई लोग ले रहे हैं, अब उसी पैसों से वो बाहर ट्रांसफर करें थ्रू प्लेसमेंट, थ्रू थ्रू लाइक स्मगलिंग, थ्रू हवाला हुंडी, थ्रू अदर मेथड, वहां पे जाके वो ऑफशोर कंपनीज बन रही हैं जो नाम के हद तक सेल कंपनीज है। लेकिन दुनिया की नजर में हमारे लिए वो कंपनीज हैं, पता नहीं किसकी हैं, काम करें। और फिर बाद में वही कंपनीज के वही पैसा आके यहाँ पे लग रहा है, फिर पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, मेरी वहां पे इंडस्ट्री थी, कंपनी थी, शेयर थे मेरे, आज शेयर होल्डर, उस टाइम पे शेयर इतने थे, आज शेयर इतने बढ़ गए, आई अर्न द मनी, देयरफॉर आज जो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई चीज परचेस कर रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, बल्कि मेरे बाहर पे जो बिजनेस है वो पैसा था जो मैंने कम किया था इतने साल पहले, शेयर्स की हद तक किया था, लेकिन आज ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो आई कैन अफोर्ड टू परचेज कार, बंगलो, बिजनेस और एनीथिंग ऑफ माय चॉइस। तो ये एक ऐसा एक डिसेप्शन है, प्रोसेस है धोखे का, जिसमें वो पैसा वाइट होता नहीं है, लेकिन वाइट नजर आना शुरू हो जाता है। और सबसे अहम बात क्या होती है कि इससे जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान में एक एजेंसी काम कर रही है तो उनको बाहर उनका असर नहीं है कि वो वहां बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करें। अगर अगर किसी से वो पैसे पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से पैसे आने के, तो बताएगा आई हैव कंपनीज, आई हैव शेयर्स अब्रॉड, तो वहां पे दे हैव नो मैंडेट और अथॉरिटी। तो फिर एक दिन वही पैसों से वही पैसे आपके मुल्क में आ जाएंगे। वो क्या कि बल्कि वही कि हम तो पैसे लेके आ रहे हैं, हम लेके जा नहीं रहे, हम तो लेके आ रहे हैं। हमारे बाहर पता नहीं है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी थी या शेयर थे जो हमने कहीं पर कभी कर लिए थे, आज वही पैसे पैसे हम आपके मुल्क में लेके आ रहे हैं। वी आर इन्वेस्टर्स, वी आर नॉट मनी लॉन्डर्स। ठीक है, तो ये स्टेजेस होती है जिससे ये पूरा क्राइम फिर कंप्लीट होता है।
तो अगली क्लास में इसके बाकी एस्पेक्ट काफी रह गए, उनकी मैं बात करूंगा, एग्जांपल दूंगा आपको मैं, रियल लाइफ एग्जांपल, और कुछ डेफिनेशंस की जो है तो वो भी आपको दूंगा इंशाल्लाह क्लास में, ताकि फिर काम की पूरा पूरा कंसेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाए। इसके अलावा मैंने कुछ लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, तो ये अपना लेक्चर भी करूंगा, तो लेक्चर भी आप सुने, वो फिर पढ़े, नोट्स पढ़े, कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ पीपीटी की, वो मैं अपलोड कर लिए मैंने, और कुछ कर लूंगा आज तक। तो जो आपके जो चारों वीक्स हैं वो सब के सब मैंने मैंने अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोड कर लिया है मटेरियल, और कुछ कुछ लेक्चर, तो आप इसको चेक करते रहें, स्टडी करते रहें। अगली क्लास में कुछ हम इंटरेक्शन ज्यादा करेंगे, आपके सवाल जवाब और ज्यादा लूंगा। उसके बाद जब तक कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर बाद में हम आएंगे लॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, फिर इफेक्ट्स, और फिर कंट्रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यस, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन।